Well, Assalamu alaikum dear students, I am Engineer Abdul Basit, and in this tutorial we are going to talk about the define menu. Okay, in define menu we are having different types of options. इनमें सबसे पहले हमारे पास है material properties. तो material properties actually refers to the types of materials that are going to be used in different types of members and area elements. That may be concrete, may be steel. ठीक है, ये सब हो सकता है. And then we have frame sections. So in frame sections we are particularly referring to that of beams and columns and bracings. Okay, and then we will talk about the definition or defining of area elements that are walls, slabs and deck sections, or in sometime drop panels. So all these things will be defined over here. Okay, and then we will talk about definition or defining of static loads. Okay, how we will define that static load, and then load combinations, and at the end we will discuss some assigning of loads as well, okay, to these area elements. Okay, so let's start with this. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक व्यू मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी मॉडल, और मैं बार बार इन वीडियोस में इसी को यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, सो यू कैन सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफाइन मेन्यू पे आ जाए. सबसे पहले आपको मटेरियल्स डिफाइन करने पड़ेंगे. ठीक है, और ये वही मटेरियल होंगे जो फिर यहाँ पे आप जब ड्राइंग करेंगे तो फिर उनमें ये इस्तेमाल होंगे. ठीक है, लेट्स से कंक्रीट है या स्टील है. और ये ड्राइंग टूल्स हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये प्रीवियस वीडियोस में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ. Here you will see only one type of material, okay, but as I have defined two more materials that are concrete and steel. So let me show you. Concrete is अगर आपके पास एग्जिस्टिंग यहाँ पे कोई डिफाइंड मटेरियल है और उसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप मॉडिफाई पे आ जाए और यहाँ पे देख ले. You can have other that concrete material, or you can rename it as well. ठीक है, concrete 1 or concrete that is having 4000 strength, KSI strength. ठीक है, 4000 PSI strength. तो ये आप यहाँ से explain कर सकते हो बस. but as the units are in foot pounds, तो ये सारे जो यहाँ पे आपको values दिख रहे हैं ये इन यूनिट्स में नहीं है. इफ़ यू वांट टू सी इट एग्जैक्टली इन PSF एंड PSI, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ से इस यूनिट को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे आइसोट्रॉपिक है, and isotropic means in all directions the properties will remain the same, and orthotropic mean the properties will be different in all the directions. So direction 1, direction 2 and direction 3, so all are having different types of modulus of elasticity. All directions are having different types of Poisson ratio, so you can edit it as well. Like for example इस डायरेक्शन में Poisson ratio 0.3 है. ठीक है, तो आप इस तरह से इसको एडिट कर सकते हो. लाइक आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ. ठीक है, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ऑल दीज थिंग्स, ये हर एक डायरेक्शन में हमारे पास डिफरेंट होगी. बट वी विल कीप इट आइसोट्रॉपिक बिकॉज नॉर्मली हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शंस रिमेन द सेम. ठीक है, सो यहाँ पे नीचे आप देख ले, ये वो यूनिट्स प्रॉपर्टीज़ है या वैल्यूज़ है जिनको आप एडिट कर सकते हो. अगर आपने प्रैक्टिकली टेस्ट रिजल्ट से ये फाइंड आउट कर दिया है दैट मास पर यूनिट एरिया ऑफ द कंक्रीट दैट यू आर गोइंग टू यूज इन दिस स्ट्रक्चर विल नॉट बी इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है, तो फिर आप इसको यहाँ पे वो एग्जैक्ट वैल्यू देख ले जो आपने प्रैक्टिकली फाइंड कर रखी है वो यहाँ पे पुट कर ले. वेट पर यूनिट वॉल्यूम को भी आप इसी तरह से पुट कर सकते हो. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इफ़ यू डू हैव द एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन प्रैक्टिकली तो वो आप यहाँ से फिर वहाँ वो यहाँ पे पुट कर ले. ठीक है, पॉइजन रेशो and then coefficient of thermal expansion and shear modulus, all these things are like editable, you can edit it. ठीक है, now coming to that important thing that is specific concrete, or you can say concrete compressive strength, that is FC dash. तो वो आपके पास इस वक्त जो वैल्यू है that is in foot per pound square. okay, sorry, pounds per foot square. तो ये इसमें वैल्यू है तो इसलिए ये ज़्यादा डिफरेंस ही आ रही है. एंड सिमिलरली ये भी हमारे पास है एंड ये भी है. ठीक है, तो ये वैल्यू इसलिए डिफरेंट आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हमने यूनिट्स हमने चेंज कर रखी है. इसके अलावा एफ वाई, इफ़ देयर इज़ एनी रीइंफोर्समेंट,
तो उसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ वो यहाँ पे है। एंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिरअप्स, ठीक है, जो स्टिरअप्स आप यूज़ कर रहे हो उसका शेयर स्ट्रेंथ कितना होगा वो ये है, ठीक है, शेयर रिइंफोर्समेंट की यील्ड स्ट्रेंथ है। एंड लाइट वेट कंक्रीट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका वेट ओरिजिनल कंक्रीट से या नॉर्मल कंक्रीट से कम होगा, तो उसके लिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा लाइक 0.7, तो मतलब ये 70% ऑफ द वेट ऑफ द नॉर्मल कंक्रीट होगा आप, ठीक है। सो मैं लाइट वेट कंक्रीट नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो इसलिए आई एम नॉट चेंजिंग इट। एंड यू कैन चेंज द कलर एज वेल, ठीक है, लेट्स से मैंने ये कलर चूज़ कर दिया है, ओके, ठीक है, तो वो कलर आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो एंड दैट विल बी ओके। तो आपको एक मटेरियल आपने कंक्रीट 4000 स्ट्रेंथ का एक्सप्लेन कर दिया है। सिमिलरली आप स्टील पे आ जाओ और उसको आप मॉडिफाई कर लो, तो अगेन यू विल हैव द सेम थिंग्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बजाय यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट स्टील होगा। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास ये है, यही यहाँ पे है, और कॉस्ट पर यूनिट वेट वो भी हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसको ओके कर ले, ठीक है, दिस इज स्टील। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स तो आप यहाँ से ऐड पे आ जाए, ठीक है, और यहाँ से आप बता दें कि आप कौन सा मटेरियल यहाँ पे ऐड कर रहे हो। लेट्स से मैं एक और कंक्रीट ऐड करना चाहता हूँ, कंक्रीट, ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ मैं लेना चाहता हूँ दे दिस इज़ 3000, ठीक है। सो ये मैंने एक नया कंक्रीट, सो आई रिकमेंड कि आप इस नाम को शॉर्ट रखें ताकि आपको पूरा वहाँ पे नज़र आ जाए। और इसकी कलर को आप इस तरह से एडिट कर सकते हो। और फिर आपने ये कंक्रीट मटेरियल ले लिया है, सो दैट्स ओके, ठीक है। और बाकी भी आपके पास ऑप्शंस है, वो आप उसको इन सारी वीडियोस को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ओके कर ले, ठीक है, एंड दैट विल बी ओके, ठीक है। Okay, here we can see that different types of materials are explained. Now you can define different types of frame sections as well. तो frame sections explain करने के लिए या define करने के लिए सबसे पहले आपको define मेन्यू में frame sections के ऑप्शन पे आना होगा, और यहाँ पे आप देख ले you have already some default members, ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन हुए पड़े हैं, so you can use them as your एज कॉलम्स एंड बीम्स एंड ब्रेसिंग्स, ठीक है। तो ये स्टील सेक्शंस है डिफरेंट टाइप्स के, पाइप सेक्शंस है, डब्ल्यू सेक्शंस है, वाइड फ्लेंज सेक्शंस एंड सो ऑन, ठीक है। और कंक्रीट के भी कुछ है, कुछ मैंने डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं कुछ कंक्रीट के हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग न्यू हेयर, तो आप यहाँ पे अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप किसी भी लेट्स से मैं यहाँ पे लेटरल बीम्स पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने मॉडिफाई के ऑप्शन पे आ जाता हूँ, तो कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे उसको रीराइट कर सकते हो, ठीक है। बट आई वांट टू ऐड समथिंग न्यू ओवर हेयर, तो मैं यहाँ पे ऐड पे आ जाता हूँ, ऐड रेक्टेंगुलर सेक्शन, और रेक्टेंगुलर सेक्शन में कौन सा मटेरियल में ऐड करता हूँ, मैं कंक्रीट ऐड कर रहा हूँ जिसकी स्ट्रेंथ है 4000, और मैंने यहाँ पे डिसाइड ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। उसकी जो ये मैं लेट से बीम सेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिख लूँगा दैट दिस इज़ बीम, ठीक है, बट मैंने ऑलरेडी एक दो बीम एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो बीम 3 हो जाएगा ये। और इसकी ये जो डायमेंशंस है, सो दीज आर इन फीट्स, सो 1.5 फीट एक्चुअली रिफर्स टू 18 इंचेस, ठीक है। समटाइम आप यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हो 18, और यहाँ पे आप डबल कॉलन यहाँ पे पुट कर लेते हो, तो जब आप नीचे आते हो तो ये खुद ब खुद इसको 1.5 फीट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज फीट में है, ठीक है। तो लेट से ये आपको विड्थ यहाँ पे एंटर करना है 12 इंचेस, ठीक है। तो 12 इंचेस यहाँ पे कर लो, और इसके लिए इंचेस का जो कीबोर्ड में ऑप्शन है वो आप क्लिक कर ले, ठीक है, डबल कॉमा का, इन्वर्टेड कॉमास का, ठीक है। जब आप दूसरे एंट्री पे जाओगे तो ये खुद ब खुद इसको 1 फीट कर लेगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। इसके बाद आपके पास सेक्शन प्रॉपर्टीज़ है, तो ये आप यू कैन रिवाइज इट, ऑलरेडी ये हम एंटर कर चुके हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट पे आ जाए, सो इफ़ यू वांट टू कीप दैट रीइंफोर्समेंट फॉर कॉलम, तो आप इसको कॉलम कर ले। सो एज वी हैव एक्सप्लेन्ड बीम, तो मैं इसको बीम रीइंफोर्समेंट पे आ जाता हूँ, और इसमें आपको पूछता है कि कवर आप कितना प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं टॉप से कवर प्रोवाइड करूंगा एंड बॉटम से कवर प्रोवाइड करूंगा फॉर बीम, ठीक है। तो टॉप से मैं 0.75 इंचेस प्रोवाइड करता हूं नॉर्मली, और यू कैन से 1 इंच,
ठीक है। और नीचे से अब देखिए ये खुद ब खुद इसने इसको फीट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं इसके लिए पुट कर रहा हूँ, दैट इज़ अच्छा ये मैंने फीट में एंट्री कर दी है, दिस इज़ 1 इंच, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप आ जाए, अब दिस विल बी इन अगेन बॉटम से मैं कवर दे रहा हूँ, सो ऑलरेडी ये इंचेस में है ही, ठीक है। आप इसको अगेन इस तरह रिपीट कर सकते हो, दैट इट इज़ फॉर एग्जांपल 2 इंचेस, सो 2 इंचेस, ठीक है। तो ये अब इसने कवर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये आपके पास रीइंफोर्समेंट है, सो यू डोंट नीड टू एडिट दिस, ओके कर लो और इसको भी ओके कर ले, ठीक है। सो बीम 3 इस यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया है, डिफाइन हो गया है। इफ़ यू वांट टू डिफाइन अ न्यू कॉलम फॉर यूर सेल्फ, तो आप रेक्टेंगुलर सेक्शन ऐड कर ले यहाँ से, और यहाँ पे आ जाए कॉलम पे, मैंने यहाँ पे कॉलम लिख दिया है, ठीक है। And this is like column 4, okay, let's say, and it is having dimension of 24 multiplied by 24 inches, okay, so you can say 24 inches में पुट करते हूँ, और सिमिलरली यहाँ पे आप आ जाए, so 2 फीट हो गया, एंड इसको भी आप 2 फीट कर ले, so this will be like that। अब इसको मैं स्टील के बजाय कंक्रीट 4000 जो हमारे पास है उसी को लेता हूँ। रीइंफोर्समेंट मेरे पास कॉलम की है, रेक्टेंगुलर है, टाइज इसमें होंगे, हाँ। कवर टू द रिबार्स, सो ये यहाँ पे फीट्स में इसने शो कर दिया है। नंबर ऑफ बार्स इन 3 डायरेक्शन, नंबर ऑफ बार्स इन 2 डायरेक्शन, तो यहाँ पे देख ले दिस इज 3 डायरेक्शन, ओके, दिस इज 2 डायरेक्शन, तो मैं इसको एडिट करके 4 कर देता हूँ, ठीक है। एक डायरेक्शन को मैंने एडिट कर दिया है, और बार्स में नंबर 9 के बजाय नंबर 8 कर देता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको उसी तरह से ले लेगा जो मैंने एंट्री कर दी है, ठीक है। एंड रीइंफोर्समेंट टू बी चेक्ड और रीइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन, तो ये खुद ई टेप डिज़ाइन कर ले तो बेहतर होगा, ठीक है। अब इसको आप ओके कर ले, सो यू कैन सी यहाँ पे रिबार्स जो तादाद है उसको चेंज हो गई है। नाउ दिस इज़ फॉर कॉलम्स, ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। सो दिस इज़ कॉलम 4 डिफाइंड फॉर यू। अब इसको ओके कर ले। नाउ इफ़ यू वांट टू ड्रा दीज कॉलम्स और बीम्स ओवर हेयर, तो वो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देगा, वो आपके ऑप्शंस में आएंगे, ठीक है। लेट्स से मैं पहले वॉल्स और स्लैब्स को भी यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास तो ये ऑलरेडी स्लैब 1, स्लैब 2 और वॉल्स है, ठीक है। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, स्लैब 1 को मॉडिफाई कर ले, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, थिकनेस है या कौन से मटेरियल का बना हुआ है, ये सारी चीज़ें, शेल है या मेम्ब्रेन है, ये आप एडिट कर सकते हो। इसको ओके कर ले, ठीक है। मैं इसको नहीं एडिट कर रहा, मैं आपको एक नीव ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ। स्लैब को आप ऐड कर रहे हो, तो ये दिस विल बी ऑटोमेटिकली स्लैब 3, एंड दिस इज़ मेड अप ऑफ कंक्रीट 4000 स्ट्रेंथ। इसकी ये विड्थ होगी, सो लेट्स से मैं इसको 1.2 कर लेता हूँ, मतलब 1.2 फीट, एंड दिस इज़ अगेन 1.2 फीट इन बेंडिंग एज वेल, ठीक है। दिस शुडंट बी अ मेम्ब्रेन बिकॉज यहाँ पे रीइंफोर्समेंट 2 लेयर्स में होगी नॉर्मली, तो मैं इसको शेल ही रख लेता हूँ, एंड दैट विल बी डिस्प्ले कलर शुड बी लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रीन कर दिया है, ठीक है, ओके, एंड दिस इज़ ओके, ठीक है। In case you want to add something like some column some walls as well, तो आप यहाँ पे walls पे आ जाए। अभी देखिए आपको walls के ऑप्शन देगा, so already you have defined one wall, ठीक है। आप इसको दोबारा से किसी दूसरे वॉल को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और इसकी ये डायमेंशंस है, इसकी कलर को मैंने यही रख लिया है, ठीक है, ओके कर लो। सो नाउ यू हैव 2 वॉल्स एंड 3 स्लैब्स एक्सप्लेन्ड, एंड बाकी चीज़ें भी है, आप इसमें इसको मॉडिफाई कर सकते हो। यू कैन डिलीट आइदर ऑफ दीज एज वेल, ठीक है, किसी को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर लो, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू द ड्राइंग मूड, ठीक है। तो अब ड्राइंग मूड में मैं जल्दी जल्दी से ट्राई कर लेता हूँ। लेट्स से आप बीम ड्रॉ करना चाहते हो इस एरिया में, तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे ये, ठीक है। सो यू हैव एक्सप्लेन्ड बीम नंबर 3, बीम 3, तो इसको आप ले ले, एंड यहाँ पे जो भी बीम अब इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ हो गए हैं, ये सारे वही बीम है जो आपने डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। सिमिलरली कॉलम्स है, तो अब कॉलम्स पे आ जाओ
और अपने कॉलम को सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका कॉलम है, दैट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल आपका था कॉलम 3 और कॉलम 4, ठीक है। उसको आप यहाँ पे इंसर्कल कर लो, तो जो भी आपके अभी कॉलम्स बन गए हैं ये वही कॉलम्स है जो आपने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है जी। इन केस यू वांट टू ड्रॉ द स्लेब, तो आप सिलेक्शन पे आ जाओ और फिर आप स्लेब पे ऑप्शन पे आ जाओ। दिस इज़ लाइक कि ये मैं स्लेब ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ स्लेब 3, तो देखिए स्लेब 3 आपने एक्सप्लेन कर रखा है ना, ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये जो हमारे पास अब स्लेब ड्रॉ होगा, दिस विल बी दैट स्लेब जो ऑलरेडी आपने डिफाइन कर रखा है, स्लेब 3, ठीक है जी। इन केस आप वो वॉल जो है आपने जो बनाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है या डिफाइन किया हुआ है, उसको आप ड्रॉ करना चाहते हो, सो यू हैव टू मूव टू द एलिवेशन फर्स्ट, एलिवेशन व्यू, एंड दैट इज़ एलिवेशन 1 1, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप एक एरिया एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर ले, और एरिया एलिमेंट में आप वॉल 2 जो आपने सेलेक्ट किया था वो आप कर ले, और उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर ले। सो दिस विल बी दैट वॉल जो आपके पास ड्रॉ हो गया है, दिस विल बी दैट वॉल जो आपके पास ड्रॉ हो गया है, ठीक है जी। अब ये ड्रॉ कैसे करते हैं ये सारे ऑप्शंस में प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप प्लेन व्यू में ही काम करना चाहते हो फॉर द स्टोरी 2, ठीक है, प्लेन व्यू में आ जाओ और यहाँ पे आप ड्राइंग ऑफ वॉल्स यहाँ पे आ जाओ, ये में वॉल है, ठीक है, और वॉल 2 इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखें जो भी इनसाइड यहाँ पे आ जाएंगे उस सारे का ये वॉल्स यहाँ पे डिफाइन कर देगा। तो यहाँ पे यू कैन सी ये वही वॉल्स है जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया एलिमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम एलिमेंट्स और मटेरियल्स, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द डिफाइनिंग ऑफ लोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज स्टैटिक लोड, ठीक है। कैसे आप डिफाइन करते हो स्टैटिक लोड्स में? हमारे पास देखिए मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ फॉर योर ईज, ठीक है, मैंने ये सारा कुछ डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप कोई लोड एंटर करना चाहते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम लिख ले फॉर योर ईज, दैट मे बी डेड लोड, ठीक है। यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर ले दैट इट इज़ ऑलरेडी जो डिफाइंड है हमारे पास, दैट इट इज़ अ डेड लोड, ठीक है। और उसका सेल्फ वेट मल्टीप्लायर डेड वेट का क्या होना चाहिए 1, बिकॉज वहाँ पे इसके साथ सेल्फ वेट भी इसका इंक्लूड हो जाएगा जो बीम्स और कॉलम्स हमारे पास होंगे उसका। तो एड न्यू लोड, सो दिस इज न्यू लोड एडेड। ये जो हमारे पास है इसको आप एडिट कर सकते हो, लेट्स से हमारे पास ये सुपर इम्पोज डेड लोड सब कुछ ठीक है, इसको मॉडिफाई कर लो, तो ये अगर इसको आप 1 कर लेते हो तो मॉडिफाई में ये नीचे 1 लिख लेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये 1 नहीं चाहिए, इसका सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 0 ही होता है, ठीक है। इसके बाद आप लाइव लोड यहाँ पे एक्सप्लेन कर ले ज़रा, डिफाइन कर ले। तो लाइव लोड यहाँ पे लाइव पे आ जाए, उसका भी सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 0 होता है, मतलब मेंबर का अपना सेल्फ वेट यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं होता। ऐड कर लो इसको। सो दीज आर दोज 3 लोड्स यू हैव डिफाइंड सो फॉर। यू कैन डिफाइन द विंड लोड एज वेल। लेट्स से मैंने विंड लोड यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। एंड हेयर यहाँ से आप अपना विंड लोड ले ले, ठीक है, दिस इज विंड, ओके। और 0 इसका सेल्फ वेट मल्टीप्लायर है। anything else you want to take from the loads, or you can say autolateral loads, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, but no need to explain it right here now। इसको आप ऐड कर लें, so you have these things now, ठीक है। इसको आप ओके कर लें, ठीक है। सो यू हैव एक्सप्लेन्ड 4 टाइप्स ऑफ लोड्स डिफाइंड। अब यहाँ पे आप आ जाए लोड कम्बिनेशंस पे, और आप अपने लिए ऐड न्यू कम्बो, ऑलरेडी मैंने एक कम्बो बनाया हुआ है, आप एक नया कम्बो बनाए, एंड दैट विल बी कम्बो 2, ठीक है, कम्बिनेशन 2। आप इसको जो भी हमारे पास है उसके साथ एडीडी कर ले, ठीक है, ऐड हो जाएगा इसके साथ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसमें कौन कौन से लोड्स इंक्लूड होंगे, तो मैं ऑलरेडी डेड लोड, स्टैटिक डेड लोड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसका स्केल फैक्टर लेट्स से मैं 1.2 लेता हूँ, ठीक है, इसको ऐड कर लें, ठीक है। दिस इज़ सुपर इम्पोज डेड लोड, इसका जो हमारे पास है दैट इज़ 1 सेल्फ वेट मल्टीप्लायर, तो इसको मॉडिफाई कर ले। इसके बाद जो हमारे पास है दैट में बी लाइव लोड, और उसका जो
फैक्टर होगा 1.6 होगा। नॉर्मली जो हमारे पास कम्बिनेशंस कोड में अवेलेबल है उन्हीं को आप यूज़ कर सकते हो। इसको भी आप ऐड कर ले, ठीक है। सो इसके अलावा हमारे पास सुपर इम्पोज्ड हो गया है। सो ये लोड्स हमने इंक्लूड कर दिए हैं। सम टाइम आप जो विंड आपने एक्सप्लेन किया है वो भी यहाँ पे ऐड कर ले, सो दैट मे बी 0.75, ठीक है। अब इसको भी आप ऐड कर ले, ठीक है जी। ओके कर लो इसको। सो न्यू कम्बिनेशन इज एडेड, ऑलरेडी वी हैव वन कम्बिनेशन, इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कम्बिनेशन नंबर 2 फॉर यू। ओके कर दो इसको। Now you are in the position to assign the loads to every panel, ठीक है। उस पे आप loads assign कर लो और इसको अब analysis को run कर लो, ठीक है। So this is how you can define or use this define menu, ठीक है। that's it। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको लोड असाइन का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।